We were here in the last class. We had seen The Homecoming, the story by Rabindranath Tagore. We saw that how Pathik plans a mischief and how Pathik's younger brother Makhan interrupts in between. Then Pathik and Makhan, they had a little argy-bargy. Argy-bargy is a little fight. Okay, so they had a little argy-bargy, and Makhan kicks Pathik. Makhan is younger, but still Makhan is kicking Pathik. Makhan is hitting him, and then Makhan himself cries and goes to his home in order to complain to his mother. Because he had seen this. Okay, then Pathik, because he knew that mother will be really angry, so Pathik doesn't want to go home. So Pathik is sitting near the bank of the river and he is chewing a piece of grass when a middle-aged man comes and asks for Pathik's home's directions. But Pathik doesn't tell him. Okay, and he just says, go and find out. You go and find out yourself. Although he's asking only for Pathik's house, Pathik could have told it very easily, but Pathik doesn't tell him. Okay, so we have seen it here. Now we are going to read from the next page, second page, first paragraph. But now a servant came down from the house and told Pathik his mother wanted him. But soon after the middle-aged man left, there is a servant who works at Pathik's house. उनका एक नौकर है, वो आके Pathik को बोलता है that उसकी मदर उसको बुला रही हैं. Pathik knew क्यों बुला रही हैं, क्योंकि माखन घर पहुंच गया है और माखन ने उसका कंप्लेन किया है. So Pathik refused to move, but the servant was the master on this occasion. Pathik ने मना किया, मुझे नहीं जाना, लेकिन सर्वेंट को क्या ऑर्डर्स मिले हैं, नौकर को क्या बोला गया है, उसको कैसे भी करके यहाँ पे पकड़ के लेके आओ. तो सर्वेंट जो है वो अभी सर्वेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, वो अभी मास्टर की तरह बिहेव कर रहा है. ही इज द मास्टर ऑन दिस occasion. He took Pathik up roughly and carried him, kicking and struggling in impotent rage. तो उसने क्या किया, उसने जबरदस्ती फतेह को पकड़ लिया और उसको किक करते हुए, उसको मारते हुए गुस्से में वो उसको लेके जा रहा है. When Pathik came into the house, his mother saw him. She called out angrily, "So you have been hitting Makhan again." जैसे ही फतेह घर में आया, उसकी मदर ने उससे क्या बोला, तुमने फिर से माखन को मारा. अभी now see, mother is already biased. मदर को क्या लगता है, फतेह जो है वो अनरूली है, वो किसी की बात नहीं सुनता है, वो स्कूल नहीं जाता है, वो पूरे दिन घूमता रहता है, अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करता है, लोगों को परेशान करता है. ओके, बट माखन के लिए उसका क्या ओपिनियन है, माखन जो है वो जेम ऑफ अ चाइल्ड है. जेम मतलब हीरा है वो. माखन बहुत अच्छा है पढ़ाई में, माँ की पूरी बात सुनता है, माँ जैसा बोलती है वो वैसा करता है, माँ को ऐसा दिखाता है वो. ओके, बट यहाँ पे माखन ने घर पे आके क्या कंप्लेन किया है, दैट फतिक ने मुझे मारा. बट फतिक ने उसको मारा क्या, डिड फतिक एक्चुअली हिट हिम? नो, इट वाज माखन हु हैड हिट फतिक, who had kicked Fatik and who had scratched Fatik's face. So Fatik answered indignantly, "No, I haven't. Who told you that?" Fatik ने क्या बोला, मैंने नहीं मारा, आपको किसने ऐसा बोला? Fatik सच बोल रहा है, Fatik is telling a truth. लेकिन ये जो सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस में Fatik का जो सच है वो भी उसकी माँ को झूठ लग रहा है. उसको लग रहा है कि Fatik झूठ बोल रहा है. His mother shouted, "Don't tell lies. You have." And Fatik said suddenly, "I tell you, I haven't. You asked Makhan." और उसने क्या बोला, आप माखन से पूछो, मैंने नहीं मारा उसको. But Makhan thought it best to stick to his previous statement. लेकिन माखन छोटा है, पर माखन बहुत स्मार्ट है. माखन ने जब माँ को आया तब उसने कंप्लेन किया था, फतिक ने मुझे मारा. तो माखन को लगा कि अब अगर वापस सही बोलूंगा तो माँ गुस्सा होगी, तो इसलिए उसने क्या बोला, यस मदर, फतिक डिड हिट मी. फतिक ने मुझे मारा है, फतिक ने मुझे हिट किया है. So he said that. Nihal Sheikh, please mute yourself. Nihal Sheikh. Thank you. Okay, so he said Fatik did hit me. Fatik's patience was already exhausted. Fatik का जो patience है वो already खत्म हो चुका था. Fatik को क्योंकि गुस्सा तो आ रहा था उसको, और उसको ऐसा लग रहा था कि माखन हमेशा झूठ बोलता रहता है. So it was just like हिंदी में एक कहावत होती है ना, सर के ऊपर से पानी जाना. तो उसको बस अभी लग रहा है कि अभी overflow हो रहा है. He could not hear this injustice. He rushed at Makhan and hammered him with blows.
और जब उसको लगा कि मैंने तो मारा नहीं, फिर भी उसने कंप्लेन किया है, तो ठीक है, अब मैं सच में उसको मारूंगा। तो वो माखन की तरफ भागा और मदर के सामने ही उसने माखन की पिटाई शुरू कर दी। ही इज हिटिंग माखन एंड ही इज ब्लोइंग his fists on Makhan. Take that and that and that for telling lies. झूठ बोलने के लिए I'm going to hit you. अब क्या, अभी प्रॉब्लम ये है कि वो मदर के सामने माखन को मार रहा है, तो मदर को क्या लगेगा, उसने पहले भी डेफिनेटली माखन को मारा होगा, पहले भी मारा होगा और अभी भी मार रहा है। His mother took Makhan's side in a moment. So mother ने क्या किया, mother took Makhan's side and pulled Fatik away, beating him with her hand. So mother started beating Fatik. Fatik is a teenager. Okay, so teenager thinks that he is a grown up person, but यहाँ पे mother उसको hit कर रही है अपने hand से. When Fatik pushed her aside, she shouted out. तो फतिक ने क्या किया, फतिक को बहुत गुस्सा आ रहा था, तो फतिक ने अपनी मदर को पुश किया, उसको धक्का दिया. What? I, you little villain? Would you hit your own mother? तो उसकी मदर को लगा कि you are a villain. तुम अपनी माँ के ऊपर हाथ उठा रहे हो, तुम अपनी माँ को पुश कर रहे हो. It was just at this critical juncture, और जब ये सारा लड़ाई चल रहा था घर में, जब ये सारा कंट्रोवर्सी चल रहा था, that time the grey-haired stranger arrived. उसी टाइम पे वो जो ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर हैं, जिसने अभी अभी फतिक से रास्ता पूछा था, जो अभी बोट से नीचे उतरे थे, वो आए and he asked what the matter was and he wanted to inquire what happened, what the matter was. फतिक looked sheepish and ashamed. और फतिक को बड़ी शर्म आई. क्यों शर्म आई? क्योंकि एक स्ट्रेंजर के सामने, वही स्ट्रेंजर जो उसके घर का पता पूछ रहा था, उसके सामने उसकी पिटाई हुई है, अभी अभी उसको मारा गया है. But when his mother stepped back and looked at the stranger, her anger was changed to surprise. लेकिन जब उसकी मदर ने एक स्टेप पीछे हटके, when she looked at the stranger, when she saw who he was, she was surprised. उनका जो गुस्सा था वो गायब हो गया और वो एकदम सरप्राइज हो गई. For she recognized her brother and cried, "Why, Dada, where have you come from?" Because वो जो stranger था वो कौन था? वो उसकी मदर का बड़ा भाई था. तो बंगाली में बड़े भाई को दादा बोलते हैं, तो वो क्या बोलती हैं, "Why, Dada, where have you come from?" तो आप कहाँ से आए अचानक से? As she said these words, she bowed to the ground and touched his feet. Now you know this is an old Indian custom. जब भी कोई बड़े लोग होते हैं तो हम नीचे झुक के उनके चरण स्पर्श करते हैं. So she bowed to the ground and touched his feet. Her brother had gone away soon after she had married. जब उसकी शादी हुई थी फतिक के डैड से, तभी उसका ब्रदर जो है वो कलकत्ता मुंबई चला गया था. ओके, और अपनी शादी के बाद वो अपने भाई से कभी नहीं मिली हैं. एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे. सो बॉम्बे गए थे, अपना बिजनेस उन्होंने वहां पे स्टार्ट किया था. हर सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड व्हाइल ही वाज इन बॉम्बे. सो हर सिस्टर ना, जब वो बॉम्बे में थे तभी उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी. जब हस्बैंड की डेथ हुई तभी भी उनका भाई नहीं आया था, तभी भी वो अपने भाई से नहीं मिली थी. बट नाउ ही हैज कम. बिशंबर had now come back to Calcutta. बिशंबर नाम है उनके ब्रदर का. So बिशंबर अभी कलकत्ता शिफ्ट हो गए हैं. And had at once made inquiries about his sister. और जैसे ही वो कलकत्ता आए, वैसे ही उन्होंने अपने सिस्टर के बारे में छानबीन किया, पता किया कि वो कहाँ हैं, और वो उनसे मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं. So he had then hastened to see her. Hastened means जल्दी, जल्दी किया उन्होंने, फटाफट से आके वो अपनी बहन के घर आ गए. So he had then hastened to see her as soon as he found out where she was. जैसे ही उनको पता चला कि वो यहाँ गांव में है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, वैसे ही वो अपनी सिस्टर से मिलने यहाँ पे चले आए. The next few days were full of rejoicing. बाकी till the time Bishambar was staying with them, वो कुछ दिन वहाँ पे रहा. तो जब तक वो वहाँ पे था, the days were really happy. Everybody was happy. The brother asked after the education of the two boys. Now brother ने पूछा, what do you do with the two boys? कैसे हैं दोनों बच्चे, क्या करते हैं? He was told by his sister. Now please pay attention here, okay? उनकी उसकी मदर की क्या ओपिनियन है उसके बारे में यहाँ पे क्लियरली बताया गया है. So he was told by his sister that Fatik was a perpetual nuisance.
उस बिशंबर को क्या बताया उनकी बहन ने? उन्होंने बोला कि फतिक जो है वो एक न्यूसेंस है, वो हमेशा परेशानी क्रिएट करता है। परपेचुअल मीन्स हमेशा के लिए, हर बार हर दिन कुछ ना कुछ नई परेशानी वो क्रिएट करता है। सो ही इज अ परपेचुअल न्यूसेंस। ही वॉज लेजी। उसने क्या बोला? फतिक लेजी है। बट क्या फतिक लेजी है? फतिक का दिमाग बहुत तेज है, अभी अभी हमने देखा था। ओके और फतिक को मजा आता है ये सारी चीजें करने में, शरारतें करने में। ओके सो पर उनकी मदर क्या बोलती है? दैट ही वॉज लेजी, डिसोबीडियंट, वो बात नहीं मानता है, एंड वाइल्ड, और वो माखन को मारता है, इसीलिए वो जंगली है, वाइल्ड है। बट माखन, नाउ माखन, दोनों भाइयों में कितना अंतर बताया है उन्होंने। माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड। माखन जो है वो सोने के जितना अच्छा है, एज क्वाइट एज अ लैम्ब, जितना कि छोटा सा भेड़ का बच्चा होता है उतना ही प्यारा है, उतना ही अच्छा है। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और वो पढ़ने में भी अच्छा है, उसको पढ़ना बहुत पसंद है। तो बिशंबर ये सब सुनने के बाद बिशंबर को लगा कि उसकी बहन को हेल्प की जरूरत है। तो बिशंबर ने क्या किया? बिशंबर सेड, बिशम बिशंबर काइंडली ऑफर्ड टू टेक फतिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड। बिशंबर ने ऑफर किया कि मैं फतिक को अपने साथ कलकत्ता ले जाता हूँ, एंड एजुकेट हिम विथ हिज ओन चिल्ड्रन इन कैलकाटा। वहां पे बिशंबर के 3 बच्चे हैं, 3 बॉयज। देखिए तो उसने क्या बोला? मेरे बच्चे तो हैं ही सही, मैं तुम्हारे बच्चे को भी ले जाता हूँ, तो वो मेरे बच्चों के साथ में वहां पे एजुकेशन लेगा सिटी में। द विडोड मदर रेडीली अग्रीड। नाउ मदर के पास और ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं था, इसलिए मदर जो है वो तैयार हो गई फतिक को कैलकाटा भेजने के लिए। When his uncle asked Fatik if he would like to go to Calcutta with him, his joys knew no bound, and he said, जब अंकल ने फतिक से पूछा कि तुम चलोगे मेरे साथ, तो फतिक जो है वो बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि उसकी खुशी का एंड नहीं था। And he said, oh yes uncle, in a way that made it quite clear that he meant it। और उसने इतना अच्छे से बोला कि हाँ मैं जरूर जाऊंगा। तो लोगों को पता चल गया, उसकी मदर को भी पता चल गया कि वो यहाँ से जाना चाहता है, वो बहुत खुश है यहाँ से जाने के लिए। Now, can you look at the circumstances which are there? The circumstances which are there. So it is that Fatik जो है, Fatik is completely ready to leave his mother, leave his family, leave his village behind and go to Calcutta उस अंकल के साथ जिसको वो अभी अभी मिला है, hardly a few days ago। ओके उसको वो जानता नहीं, उसके बच्चों को नहीं जानता, उसकी फैमिली को नहीं जानता, बट वो इतना परेशान हो चुका है यहाँ पे कि वो यहाँ से जाने के बारे में सोच रहा है। उसकी मदर हमेशा उसको डांटती रहती है, माखन हमेशा उसकी कंप्लेन करता रहता है। So now he wants to leave his house and go away. Patik, as soon as all was settled, kept asking his uncle every minute when they were to start. So Fatik, जैसे ही सब कुछ शांत हुआ, और तो वो हर हर 1 घंटे में अपने अंकल से पूछता कि वो कैलकाटा के लिए कब निकलेंगे, वो कैलकाटा कब जाएंगे। He was on pins and needles all day long with excitement। वो इतना एक्साइटेड था कैलकाटा जाने के लिए कि उसको ऐसा लग रहा था उसके पैर के नीचे उस किसी ने ना पिन्स चुभाए हों, जैसे किसी के नीचे पिन चुभते हैं तो हम जंप करते हैं, तो उतना ही ज्यादा एक्साइटेड फतिक था। एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट, और पूरी नाइट वो जागता रहता था। नाउ कैन यू सी इट हियर? यहाँ पे जो माँ ने बोला था फतिक लेजी है, डिसोबीडियंट है, ओके ही इज नॉट गुड एट स्टडीज एंड ही इज अ परपेचुअल न्यूसेंस, ये जो वर्ड्स माँ ने फतिक के लिए बोले थे, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो फतिक यहाँ पे बता रहा है कि वो इनमें से कुछ भी नहीं है। यहाँ पे उसने आगे बताया है, उसके बिहेवियर से हमें पता चलता है दैट ही इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हिज मदर थॉट। ओके सो ही बिक्वेट टू माखन, बिक्वेट मतलब क्या होता है? उसने माखन को प्रदान किया। जैसे पहले पुराने जमाने में राजा होते थे ना, राजा अपनी प्रजा को कुछ चीजें प्रदान करते थे, कभी जमीन देते थे, कभी उनको गिफ्ट्स देते थे, तो प्रदान करना, दैट इज कॉल्ड बिक्वेट। सो ही बिक्वेट टू माखन इन परपेचुटी। वो इतना खुश था कि उसने माखन को क्या दिया? हिज फिशिंग रॉड, उसकी फेवरेट फिशिंग रॉड थी। वो किसी को हाथ नहीं लगाने देता था, बट वो इतना खुश है कि वो माखन को अपनी फिशिंग रॉड दे रहा है। नाउ लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू चिल्ड्रन, माखन और फतिक जो हमेशा लड़ते रहते हैं,
एंड लुक एट इट नाउ, जब फतिक को पता है कि वो जाने वाला है तो वो कितना अच्छे से बिहेव कर रहा है अपने भाई के साथ। हिज बिग काइट, उसकी एक बड़ी सी काइट है जो उसने उसको दे दिया है। ओके, वैष्णवी प्लीज म्यूट योरसेल्फ बेटा। वैष्णवी शिवले, वैष्णवी शिवले म्यूट योरसेल्फ प्लीज। वैष्णवी, ऑलराइट, सो उसने माखन को क्या दिया? उसने माखन को अपना फिशिंग रॉड दिया, अपना बड़ा काइट दिया, उसके जो मार्बल्स थे जिनसे वो खेलता था, ये सारी चीजें वो माखन को हाथ नहीं लगाने देता था। But now he's so happy that he gave his fishing rods, his kite, and his marbles to Makhan. Indeed, at this time of departure, his generosity towards Makhan was unbounded. वो इतना खुश था कि वो माखन के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहा था। He was very generous. वो बहुत दयालु था, माखन को जो चाहिए था उसने माखन को सब दे दिया। But now, when they reached Calcutta, now please see, यहाँ से हमारा दूसरा फेज स्टार्ट हो रहा है स्टोरी का। तो वो दिन आया when he went to Calcutta with Bishambar, he was really happy, बहुत खुश है। लेकिन क्या अपना घर छोड़ के एक नए घर पे जाना, और इतनी खुशी खुशी, उसकी मदर को थोड़ा सा दुख हुआ ये देख के कि फतेह बहुत खुश है, मुझे छोड़ के जा रहा है, लेकिन फतेह बहुत खुश है। आफ्टर ऑल शी वॉज अ मदर एंड शी लव्ड हर चाइल्ड। ओके, वो बहुत प्यार करती थी फतेह से, पर हाँ फतेह की कंप्लेन्स इतनी आती थी कि वो थोड़ा सा बायस्ड हो गई थी फतेह को लेके। बट after all, Fateh was a family. So here we can see that the mother is really sad, but that day came and Fateh left with Bishambar. But when they reached Calcutta, Fateh made the acquaintance of his aunt for the first time. जब विशंबर और फतेह पहली बार कलकत्ता पहुंचे तो फतेह को अपनी आंटी मिली सबसे पहले, विशंबर्स वाइफ। So he met aunt for the first time. She was by no means pleased with this unnecessary addition to her family, but उसकी आंटी उसको देख के खुश नहीं हुई। She was not happy at all. क्यों खुश नहीं थी? She had 3 children. उनके 3 बड़े फतेह के ही एज के 3 टीनेजर बॉयज थे, और एक और लड़का उनकी फैमिली में ऐड हो गया, और वो भी बिना उनसे पूछे बिशंबर उसको यहाँ पे ले आया। So she was really unhappy. She's not happy with Patik at all. She found her own 3 boys quite enough to manage without taking anyone else. Now, उनके 3 boys जो थे वही बहुत मुश्किल है उनके लिए मैनेज करना, but now there is one more. And to bring a village lad of 14 into their midst was a terribly upsetting. और एक 14 साल का लड़का, ना तो वो बहुत छोटा है जिसको जिसको छोटे बच्चे की तरह प्यार किया जाए, और ना ही वो बहुत बड़ा है जिसको बड़ों की तरह और ट्रीट किया जाए। सो नाइदर ही इज अ चाइल्ड नॉर ही इज एन एडल्ट। तो वो बीच की एज में है, 14 ईयर्स का है, तो उनको पता नहीं कि उसे उसके साथ में कैसे बिहेव करना चाहिए। एंड दैट टू फ्रॉम द विलेज, गांव का बच्चा शहर में आया है। Bishambar should really have thought twice before committing such an indiscretion. और उनको क्या लगा? उनको लगा बिशंबर को सोचना चाहिए था फतिक को यहाँ पे लाने से पहले, फतिक को लाने से पहले उनको बहुत बार सोचना चाहिए था। So after that, in this world of human affairs, now see, टैगोर की ना ये आदत होती है, जब भी टैगोर शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, टैगोर बीच बीच में थोड़ा ज्ञान देते हैं, थोड़े से चीजें बताते हैं। तो ये टैगोर का स्टेटमेंट है जो उन्होंने हमें बताया है। In this world of human affairs, there is no worse nuisance than a boy at the age of 14. मैंने आपको बताया था ये थर्ड पर्सन नरेशन है, तो जो हमारा नेचर है वो हमें थोड़ा सा ज्ञान की बातें बता रहा है। वो क्या बोलता है? इस वर्ल्ड में साल का एक बच्चा सबसे बड़ा न्यूज होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो बड़ों की तरह बातें करता है तो लोग उसको क्या बोलते हैं कि तुम अभी छोटे हो, बड़ों के बीच में मत बोलो। और अगर वो बच्चों की तरह बातें करता है तो उसको बोलते हैं कि तुम बड़े हो गए हो, तुम बच्चों की तरह मत करो। ओके, सो ही इज नाइदर अ ग्रोन अप नॉर ही इज अ चाइल्ड। तो उसको खुद को समझ में नहीं आता कि उसको कैसे बिहेव करना चाहिए। सो ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल नॉर यूजफुल। ऑर्नामेंटल बोले तो छोटा बच्चा जिसको प्यार किया जाए, और यूजफुल बोले तो जिसको काम दिया जाए।
ना तो प्यार लगता है, नहीं कोई काम दिया जा सकता है बड़े बच्चे की तरह। It is impossible to shower on him as a little boy. छोटे बच्चे को जैसे प्यार करते हैं, हग करते हैं, किस करते हैं, वैसे अफेक्शन उस छोटे बच्चे पर नहीं दिया जा सकता है। मैम And आवाज he's नहीं आ रहा। always getting in the वो बीच में आता है। मैं बोले तो उसको लगता है मुझे anything want to say? मैम आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। आवाज की प्रॉब्लम हो रही है। Okay, wait a second, let me try. All right, is it fine now? Is it better? Is it better? यस मैम। Okay, so child 14 with a childish lisp, he is called a baby. अगर वो छोटे बच्चों की तरह बात करता है तो उसको बेबी बोला जाता है कि तुम इतने कोई छोटे बच्चे हो क्या? और and if he answers in a grown up way, he is called impertinent. और अगर वो grown up की तरह बात करता है तो उसको क्या बोलते हैं कि तुम बहुत ही एडवांस हो गए हो, अपने से बड़े लोगों से ऐसे बात नहीं करते हैं, तुम अपने काम से काम रखो। In fact, any talk at all from him is resented. लेकिन उसकी आंटी जो है पहली चीज उसको पसंद नहीं करती हैं और दूसरी चीज वो उससे बात करना भी पसंद नहीं करती हैं, तो वो उससे बात नहीं करती हैं, उससे दूर रहती हैं। And then he is at the unattractive growing age. और दूसरी चीज वो अभी जिस एज में है 14 years, he is growing very quickly, height भी बहुत जल्दी से बढ़ता है। See, there are many physical changes which happen in a boy of 14. So he is unattractive क्योंकि उसका चेहरा जो है वो अब उतना क्यूट नहीं है जितना छोटे बच्चों का होता है। He is growing. He grows out of his clothes with indecent haste. उसके कपड़े जो है वो जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं। His voice grows hoarse. उसकी आवाज थोड़ी सी भारी हो रही है. And breaks and quavers. और वो जो है उसको खुद समझ में नहीं आता है कि उसके अंदर ही इतने सारे जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्या करे। And his face grows suddenly angular and unsightly. और छोटे बच्चों की तरह उसका क्यूट फेस नहीं है, अभी अभी उसका फेस जो है वो एंगुलर हो गया है और इतना अच्छा नहीं दिखता है। तो ये जो सारे चेंजेस हो रहे हैं, नाउ प्लीज बी केयरफुल क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ओके, ये जो क्वेश्चन आता है वो है कि फतिक में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं एंड व्हाट हैपेंस व्हेन फतिक गोes to Calcutta. So we know that first Fatik is a 14-year-old boy. Second, he's in teenage, so there are many physical changes which are happening in Fatik. Physical changes कौन कौन से हो रहे हैं? पहला, ओके एक काम करते हैं, इसको आज यहीं पे मैं आप लोग के लिए स्टॉप करती हूँ, पर मैं आप लोग को कुछ और चीजें बताती हूँ फर्स्ट। लेट मी स्टॉप माय शेयर हियर, वेट अ सेकेंड। Let me share again. Okay, so we are talking about the physical changes which are happening in Fatik. तो Fatik में क्या क्या physical changes हो रहे हैं? Let's talk about it. बहुत सारे changes हो रहे हैं, mental, emotional, physical, but let's talk about the physical changes first. Okay, so physical changes, कौन कौन से physical changes हो रहे हैं Fatik में? वॉइस चेंज हो रहा है। Yes, we saw a few things. सबसे पहला जो है that he is a 14-year-old boy. Okay, तो पहला वो क्या है, वो teenager है, 14 years का, right? तो उसकी वजह से उसमें कुछ चीजें हैं जो हो रही हैं। फर्स्ट, हिज वॉइस इज ग्रोइंग होर्स। होर्स मतलब भारी हो रही है, आवाज चेंज हो रही है, ठीक है। सेकंड क्या चेंज हो रहा है? यस, हाइट बढ़ रही है। यस, ही इज हाइट इज इंक्रीजिंग रैपिडली। ओके, रैपिडली इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जल्दी उसके कपड़े छोटे हो रहे हैं। और क्या हो रहा है? He is at the unattractive. यस, ही इज अनअट्रैक्टिव एज। ओके, इसका मतलब क्या है? नो लॉन्गर अ क्यूट चाइल्ड, ठीक है। वो अब एक क्यूट चाइल्ड नहीं है, वो एक बड़ी ही अनअट्रैक्टिव सी एज में है। उसका जो फेस है, फेस इज गेटिंग Angular एंगुलर। and unsightly. एंगुलर मतलब, यस,
और क्या? Unsightly. Angular and unsightly. Yes, he's unsightly and angular. That is okay. Angular and unsightly. Okay, तो ये अभी हमने देखा. So space is getting angular and unsightly. And at the same time, we also His know voice. that voice I have already written. His voice is growing hoarse. He is resented and not given attention. ठीक है, उसको अटेंशन की जरूरत है, बट बिकॉज ऑफ दीज फिजिकल चेंजेस उसको कोई अटेंशन नहीं दे रहा है और उससे कोई बात भी नहीं करता है. ओके, सो एंड हिज वॉइस क्विवर्स एंड शेक्स. ओके, वो वॉइस वो बोलने में हिचकिचाता है, हकलाता है, थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो रहा है बोलने में. तो ये जो सारी चीजें हैं, वट एवर इज हैपनिंग हियर, ओके, ये जो सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके साथ में, उसकी वजह से फतिक इज गोइंग थ्रू एन इमोशनल ट्रॉमा. इस सब की वजह से उसको एक इमोशनल और एक सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे देखने की है वो ये है कि वो अपने घर से बहुत दूर है, मीलों दूर है अपने घर से, जहाँ पे उसको प्यार करने वाला, उसको केयर करने वाला, इवन उससे लड़ने वाला कोई भी नहीं है. ओके, तो उसने खुद डिसाइड किया है अपने घर से दूर जाना है. वो बहुत खुश था जब वो अपना घर छोड़ के आया है. बट व्हेन ही सॉ द सर्कमस्टेंसेस हियर, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं? जब वो गांव से शहर में आया है तो चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं. गांव में खुला खुला एरिया होता है, ग्रीनरी होता है, नदी है, उसका गैंग है, उसके फ्रेंड्स हैं, ओके, उनका लीडर है वो. लेकिन जब वो सिटी में आया है तो सिटी में, कलकत्ता में अगर आपको पता होगा तो छोटे छोटे से घर होते हैं, बहुत क्लोज कॉम्पैक्ट घर होते हैं. ठीक है, घूमने के लिए जगह नहीं होती है, ओपन स्पेस नहीं होता है, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, उसकी आंटी जो उसकी रिलेटिव हैं लेकिन वो भी उससे बात नहीं करती हैं. ओके, तो ही इज अ कंप्लीट स्ट्रेंजर इन अ स्ट्रेंज सिटी. एक ऐसी सिटी में जहाँ पे वो अपने आप को अटैच नहीं कर पा रहा है. वो क्या हो रहा है, एक वर्ड है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जिसको हम बोलते हैं एलियन. को बताइए, थीम है द होम कमिंग का, एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थीम्स. ओके, एलियनेशन एंड माइग्रेशन, ये दो थीम्स थे. और क्या था, माइग्रेशन. These are two themes. Okay, so first we have already seen उसने migrate किया, कहाँ से migrate किया? From the village to the city. अब because of this migration, because of the change that has happened, he is feeling alienated. Aliens कौन होते हैं? Aliens, tell me please. Aliens, who are aliens? दूसरे ग्रह के. जो दूसरे ग्रह से आते हैं. दूसरे ग्रह के. Yes, very true. दूसरे ग्रह के जो प्राणी होते हैं उनको बोला जाता है एलियंस. ओके, तो अभी फतिक को कैसा फील हो रहा है? फतिक को ऐसा फील हो रहा है जैसा वो किसी दूसरे ग्रह से आया है, वो यहाँ पे बिलोंग नहीं करता है. ये जगह वैसी नहीं है जैसे उसने सोचा था, ये वैसा नहीं है जिसमें वो रह सकता है, जिसमें वो पला बड़ा है. सो दिस इज नॉट द प्लेस वेयर ही बिलोंग्स टू. सो उसका एलियनेशन और उसका माइग्रेशन, ये दोनों आपस में लिंक्ड है. ठीक है, यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ गया? Yes, 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 ma'am. ma'am. Is it okay with everyone here? Yes. Yeah. Yes. Okay. Sonali, I'm sorry, but I can't hear you properly. तुम्हारा अक्षता, अक्षता नेघूत, Yes, ma'am. Ma'am. अक्षता अच्छे से समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. सो एक काम करते हैं, आज के लिए मुझे लगता है बहुत है. ओके बच्चों, मैं आप लोगों के साथ में आज एक YouTube का लिंक शेयर करूंगी. ओके, वो YouTube के लिंक में मैं आप लोगों को एक